Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you an interesting topic, that is PHP. So let us start with the second chapter, that is control structure and loops. Today we will going to study conditional and statement. In next lecture we will going to continue with using loops for repetitive task and combining loops and arrays. So let us start. Introduction. There are different types of condition and looping statement present in this chapter. Detailed study of this are explained with an example for clearing the concept of this. So let us start. What is conditional statement? The conditional statement is divided into four different types. First one is if statement, next one if else statement, if else statement, and the last one is switch statement. So let us see them with an example. Now the first one, a conditional statement are used to perform different action based on different condition. In PHP we are having different type of statement. If statement execute some code if one condition is true. If else statement execute some of the code if condition is true and another code if that condition is false. If else statement is executed on different code for more than two condition. And the last one, switch statement, is one of the block which are having many block of code to be executed. Let us start with if statement. Now we are having syntax of if statement. If condition, opening curly braces, the code to be executed if it is true, and the closing curly braces. Now we will see an example of that. HTML tag, body tag, PHP. Now we are giving here date to a variable t. Okay, we are using a data type, that is a date, and the variable data type is provided to t, and we are using h. Now what is an h? H means the hours of this current PC. Okay, in today's date, what are the hours right now going on, it will be taken as an h. Now we will have if condition, that is t is less than 20. Okay, if the hours are less than 20, then there will be a message, have a good day. Okay, if today hours is 16, which means अगर अभी currently 4 बज रहे हैं, okay, now it is a 4 o'clock, 4 PM. अगर अभी 4 बज रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज आना चाहिए, have a good day. Okay, 16 is less than 20, so message will be display this. If there is a 22, okay, 22 means अभी रात के 10 बज रहे हैं. ओके, तो ये 22 लेस है क्या 20 से? नहीं, तो यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा. बट अभी तो 4 बज रहे हैं. ठीक है, इफ 16 इज लेस देन 20, मैसेज क्या आएगा, हैव अ गुड डे. यहाँ पे क्लोज हो गया बॉडी टैग, HTML टैग. आउटपुट क्या आएगा, ऑटोमेटिकली आउटपुट आएगा, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम की डेट आपकी लेगा. ओके, ये डेट जो है ये डेटा टाइप है, डेट. डेट के अंदर h जो है वो आवर्स लेता है. फिर से बता रही हूँ, ये डेट डेटा टाइप है, ये आवर्स लेता है. सो आउटपुट विल बी हैव अ नाइस डे इफ करंट टाइम, दैट मीन्स आवर्स इज लेस देन 20. ओके, नाउ वी विल सी इफ एल्स स्टेटमेंट. अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, जो पहली कंडीशन है, ठीक है, इफ के बाद कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ जंप करेगा. अगर यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हुई, इसकी कंडीशन जो इसने प्रोवाइड की है वो ट्रू नहीं हुई, वो फॉल्स है, तो वो एल्स के पास जाएगा और फॉल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका. अब यहाँ पे देखिए HTML टैग, बॉडी टैग, PHP. यहाँ पे डेट के लिए डेटा टाइप लिया है हमने t और सेम आवर्स. फिर से हमने बोला है
टाइमिंग जो है टी फॉर टाइमिंग इज लेस देन 20, तो मैसेज क्या आना चाहिए, हैव अ गुड डे। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने अभी जैसे बताया था 22 है, अभी रात के 10 बज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइमिंग अभी 10 बज रहे हैं, लास्ट के 22 है, तो यहाँ पे ये 20 एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये डायरेक्टली गुड नाइट पे जंप करेगा। ओके, आया समझ में। अगर यहाँ पे 16 होता तो यहाँ पे, अगर 16 भी नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 o'clock होते तो यहाँ पे हैव अ गुड डे आता, लेकिन अगर यहाँ पे अबाउट 20 होगा तो यहाँ पे गुड नाइट आ जाएगा। सो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे ये सेटिस्फाई हुआ तो ट्रू के लिए जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। और यहाँ पे जो डेट है और डेट के जो आवर्स है वो करंट सिस्टम के लेगा। तो मेरे सिस्टम में फिलहाल के लिए अभी तो 6 बज रहे हैं, दैट मीन्स 18 हो रहे हैं, 20 नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आउटपुट में, हैव अ गुड डे इफ करंट टाइम इज लेस देन 20 एंड हैव अ गुड नाइट अदरवाइज का मतलब 20 से ज़्यादा हुए तो यहाँ पे गुड नाइट आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट? नाउ देयर विल बी अ कंडीशन, ओके, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन else condition will be checked and this else condition is first time false. Okay, see this code to be executed if first condition is false. अब यहाँ पे क्या होगा, if else की कंडीशन याद रखो, फर्स्ट टाइम पे कंडीशन होती थी, फिर ट्रू की कंडीशन होती थी, सेम यहाँ पे भी। अब फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे ट्रू है तो इसका अपोजिट आएगा फॉल्स। ओके, else if condition the code to be executed if first condition is false and this condition is true. यहाँ की कंडीशन ये ट्रू है और इसका अपोजिट ये फॉल्स है, और ये फॉल्स की एग्जीक्यूशन कब होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये यहाँ पे ये वाली कंडीशन एक्टिव होगी। एल्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लास्ट में जाके एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे भी फॉल्स हुआ, यहाँ पे भी फॉल्स हुआ, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, HTML टैग, बॉडी टैग, PHP, सेम PHP के अंदर हमने डेट लिया है, डेट के अंदर आवर्स है। अभी यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं द आवर्स ऑफ द सर्वर इज, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है टाइम, इको एंड विल गिव द फॉलोइंग मैसेज। ओके, यहाँ पे हमने क्या बोला है, एंड गिव द फॉलोइंग मैसेज। नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या किया है, इफ टाइम इज लेस देन 10, तो यहाँ पे अगर टाइमिंग लेस देन 10 है तो क्या मैसेज आना चाहिए, हैव ए गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे एल्स इफ में क्या बोला है, अगर आपका टाइमिंग 10 से बढ़कर है और 20 तक है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव ए गुड डे। एल्स वहाँ पे अगर 20 से बढ़कर है तो क्या आ जाएगा, गुड नाइट। अब देखो हमने क्या किया है, ये कंडीशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट टाइम पे क्या बोला है, 1 से यहाँ पे 12, ठीक है, मतलब ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 10 तक अगर नंबर आता है तो मैसेज क्या आ जाएगा, गुड मॉर्निंग, अगर आपका सर्वर का टाइमिंग है। 10 से लेके 20 तक आपका टाइमिंग है, ठीक है, 20 पूरा नहीं मतलब 90, ठीक है, तो आपका टाइमिंग 10 से लेके 19 तक है तो वहाँ पे आएगा हैव ए गुड डे। अगर आपका टाइमिंग 20 से लेके 24 तक है तो आ जाएगा आपको गुड नाइट का मैसेज। तो यहाँ पे अभी हमने क्लोज किया है बॉडी टैग, HTML टैग। अब यहाँ पे आपको आउटपुट क्या आ जाएगा, ये देखो आउटपुट, हैव ए गुड मॉर्निंग। ओके, हैव ए गुड मॉर्निंग। अब ये गुड मॉर्निंग के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया है, इफ द करंट टाइम इज लेस देन 10 एंड हैव ए गुड डे इफ द करंट टाइम इज लेस देन 20। अगर करंट टाइमिंग आपका 10 है तो आएगा गुड डे। अगर करंट टाइमिंग आपका लेस है 20 से तो आपको क्या मैसेज, सॉरी, अगर आपका करंट टाइमिंग 10 है या फिर पूरा 10 है या फिर 10 से कम है तो आपको क्या आ जाएगा मैसेज, गुड मॉर्निंग। और अगर आपका करंट टाइमिंग 10 से बढ़कर है और 20 से लेस है तो आपको आ जाएगा गुड डे का मैसेज। अदरवाइज आपका जो भी है 20 से बढ़कर 24 तक जो भी आपका टाइमिंग है वहाँ पे आ जाएगा गुड नाइट। नेक्स्ट है हमारा स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड।
अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा आपका कोड। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको कंडीशन दी जाएगी। ये केसेस है, केसेस 1 द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ, केसेस 2 यहाँ पे ब्रेक आएगा कंपल्सरी, ठीक है। केसेस 2 द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर सेकेंड 1 ब्रेक केसेस 3। यहाँ पे ये n नंबर ऑफ केसेस होंगे, लेकिन इन सबको ब्रेक कंपल्सरी प्रोवाइड होगा। केस 1 है तो केस 1 के बाद ब्रेक आ जाएगा, केस 2 है केस 2 के बाद ब्रेक आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट कोई कंडीशन ऐसी है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है आपके केसेस के बीच में, तो वहां पे हम लोग बाय डिफॉल्ट, ओके, ये डिफॉल्ट जो आपको दिख रहा है, डिफॉल्ट के अंदर हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं और जो डिफॉल्ट का कोड है वो कंपल्सरी एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। अब ये एग्जाम्पल में देखो, HTML टैग, बॉडी टैग, PHP टैग। अब यहाँ पे दिया है फेवरेट कलर, ओके। फेवरेट कलर को क्या दिया है, रेड। अब यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। ये यहाँ पे ये आपका आता है, ये देखो ये आपका है स्विच, दिख रहा है, नीचे स्विच लिखा है। तो स्विच के लिए, स्विच के अंदर कुछ कंडीशन डालने के लिए वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करना पड़ेगा हमें कंपल्सरी, ठीक है। वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर क्या किया है, रेड। वेरिएबल का नेम क्या है, फेवरेट कलर, और फेवरेट कलर के अंदर डेटा क्या है हमारा, वैल्यू क्या है उसके अंदर, रेड। तो अब यहाँ पे स्विच के अंदर हमने क्या लिया है, स्विच के अंदर मैंने डाला है फेवरेट कलर, मतलब स्विच के अंदर अभी यहाँ पे लिखा हुआ है रेड। अब ये केस 1 के पास जाएगा, देखेगा रेड है क्या, और रेड है तो मैसेज क्या आएगा, योर फेवरेट कलर इज रेड, और फिर ये ब्रेक हो जाएगा। फिर से ये क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा रेड, यहाँ पे देखेगा अभी केस 2 के पास ब्लू है और मुझे चाहिए रेड, तो इसके पास जाएगा क्या, वो नहीं। फिर से इसके पास आएगा, देखेगा मेरे पास है रेड, इसके पास क्या है, ग्रीन, जाएगा क्या, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे पिंक कलर डाला होता, ठीक है, और ये पिंक कलर इसके रेड के पास भी नहीं आता, ब्लू के पास भी नहीं आता, ग्रीन के पास भी नहीं आता, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैसेज क्या आ जाता, योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड, ब्लू नॉर ग्रीन, ओके। बट अभी यहाँ पे मेरे पास तो रेड कलर था, तो रेड कलर का मैसेज तो मुझे मिल चुका है केस 1 के पास, योर फेवरेट कलर इज रेड, तो आउटपुट में आ जाएगा योर फेवरेट कलर इज रेड। आया समझ में। ये स्विच क्या करता है, अपने पास जो भी वैल्यू है वो केस के अंदर ढूंढता है, अपने आप को मैच करता है। ये स्विच के अंदर जो वैल्यू है, स्विच के अंदर कौन सी वैल्यू है, रेड, तो ये रेड के अंदर ये खुद को ढूंढेगा, रेड किसके पास है, इसको मिल जाएगा तो मैसेज प्रिंट करेगा। अब मैंने ये सेम एग्जांपल लिया है आपको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैंने इसका फेवरेट कलर चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक, ताकि आपको इजीली समझ आए मैं आपको क्या समझा रही हूँ। HTML टैग, बॉडी टैग, यहाँ पे PHP टैग ओपन किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले रेड था, मैंने अभी इसको रेड को चेंज करके ब्लैक किया है, ठीक है। फेवरेट कलर इज ब्लैक, स्विच के अंदर अभी ब्लैक कलर है। अभी केस 1 के पास वो चेक करेगा ब्लैक है क्या, नहीं रेड है, तो ये स्किप करेगा, ब्रेक करेगा खुद को। नेक्स्ट टाइम फिर से देखेगा, इसको ब्लैक चाहिए, इसके पास ब्लू है, इसके पास भी नहीं जाएगा। फिर से यहाँ पे देखेगा ब्लैक, फिर से इसके पास ग्रीन है, नहीं जाएगा। अब ये किसी के पास भी उसे नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट मैसेज जो है वो प्रिंट कर देगा, योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड, ब्लू नॉर ग्रीन। आया मैसेज, आउटपुट दिख रहा है आपको, ओके। आई होप आज की कंसेप्ट सेकेंड चैप्टर की आपको पूरी समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो नोट कर सकते हो, हम प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।